India is the largest democratic state in this world, culturally deeply rooted. India's socio-economic diversity is very vast and complex. Despite of having complexity of the socio-economic diversity, India still maintains one of the successful democratic state across the globe. India did not face civil war and financial crisis like situations at all. How India got such kind of success? And if I want to say that, I completely give credit to the Indian Constitution and constitutional makers. India's economy is the third largest economy in this world after the USA and China. So that means India is progressing very rapidly. India took 2.4% of the global areas. In populations wise, if you see, India is the second largest populations in this globe after the China. And in area wise, if you see, India holds the 7th positions after the Russia, Canada, America, China, Brazil, Australia. India's socio-economic diversities and cultural diversity is completely commendable. And globally, if you see, every nation appreciates India's because having so much or having huge populations, still India maintains the values and the spirit of democracy at a very highly successful rate. And as I said that, whatever the Indian citizens is getting right now, whatever the Indian citizens enjoys, especially the fundamental rights, it's absolutely the constitutional makers who ensured about it. India got independence in 1947 from the colonial masters. And after that, Indian Constituent Assembly framed the Indian constitutions. At the behest of Indian constitutions, that India will be run at a very successful way. So the drafting committee of the Indian constitutions and every member of the Indian Constituent Assembly ensures that we will give such kind of constitutions to our next generations that India will not face such kind of gruesome or such kind of draconian situations that our forefather had been faced. So drafting committee's chairman Dr. B.R. Ambedkar made Indian constitutions where he ensured that every individuals and every sections of the society will be benefited and will be privileged, and nobody's right will be ignored or nobody's right will be curtailed. So that's why he proposed the fundamental rights, and which are inspired from the American constitutions. In fundamental rights, every parts of the people, every parts or every rights has been conferred to the every individuals of the of India. That is right to equality, right to life, right to freedom religious freedom, cultural and educational freedoms, and the last one is your constitutional remedies. That means if anybody's fundamental rights are violated, you directly go to the courts and issue a writs for its remedies. So just see how India is governed. Indian constitution completely and explicitly talk about the India's political rights, the people's political rights, people's economic rights, as well as people's social rights. The fundamental duties were also incorporated after that in 1776 Indian Constitution's amendment. But before that, we have been enjoying our fundamental rights. Our government is just like a parliamentary form of government. It is not the presidential form of government, or also we can say the prime ministerial form of government. In India, if you see, we ensure the spirit of democracy at every stage of regimes. So thanks to the Indian constitutional makers that we are very lucky, we enjoy the fundamental rights and we leave this country in a very peaceful and serene way.
जस्ट टिके पूर्व मु कौन कहूली इंग्लीश रे किछि इंडिया विषय कहूली एवं मु चाहूँ तुमे माने मध्य इंग्लीश रे एमिति कम्युनिकेट करो निज पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे सेति मु नहीं आसी आज इंग्लीश स्पोकन इंग्लीश क्लास प्रथम क्लास एई क्लास रे हमें कोन ना इंग्लीश को जानिबा इंग्लीश रो स्पीकिंग एते काहे की इंपोर्टेंट डिमांड कोन पाई स्पोकन इंग्लीश रे एते आ इंग्लीश को शिखिबा बा इंग्लीश को कहिबार राइट वे कोन से विषय में डिटेल भाव में कहबी आउ किछि किछि जो जो प्रॉब्लम अछि आमे इंग्लीश काहे की कहि पारुने जो जो मिछ धारणा रहिछि मन भितरे जो जो भ्रम धारणा बा मिथ्स रहिछि सेउडा को भी आज आमे क्लियर करबा तो लेट्स स्टार्ट सो मोटी फर्स्ट लिखि छि कोन देखो व्हाई शुड वी लर्न स्पोकन इंग्लिश काहे कि आमे स्पोकन इंग्लिश शिखिबा दरकार व्हाई शुड वी लर्न स्पोकन इंग्लिश आमे स्पोकन इंग्लिश काहे की शिखिबा दरकार किछि किछि म लिखि छि देखो फर्स्ट आसीबो सर डिमांड बहुत इंग्लिश शिखिबार जो डिमांड ना चारिआडे सार अच्छी से आम इंग्लिश शिखा दरकार सर देखो इंग्लिश रो डिमांड बहुत अच्छी नो डाउट कौन पाई ना बिकॉज इंग्लिश सीम्स टू बी ए प्रोफेशनल लैंग्वेज जो जगह में प्रोफेशनली आसी जाए ना इंग्लिश को बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज भाव में यूज करा जाए इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर जो तुम कौन सी जगह जॉब करने जाऊँ प्राइवेट सेक्टर जॉब करने जाऊँ इंग्लिश इंपोर्टेंस बहुत अच्छी बिकॉज इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज और तुम इंटरनेशनली कम्युनिकेट कर बुझी होची ना ना बिकॉज इंग्लिश तुमको गोटे रिच प्रोवाइड कर हेवी एंड हाई रिच प्रोवाइड कर द्वारा तुम कौन कर ना तुम ग्लोबली जो जगह भी जीव आराम से तुम्हें कथा सहित कम्युनिकेट कर ये सर ना इट इज कंप्लीटली ए लैंग्वेज इजंट इट जस्ट लाइक ओडिया हिंदी जमीतिका सेमिति लैंग्वेज सेमिति इंग्लिश भी गोटे आमर लैंग्वेज देखो आउ कौन लिखी नीड एवरीवेयर सर सब जगह इंग्लिश लगुच तुम्हें जब देखो ओडिया मीडियम पिला माने सिंपल ओडिया मीडियम 10th जा पढ़ले तापर जदि आसीजिवो साइंस आम 10th जा कौन ओडिया पढ़ुचे 10th पर कौन जाऊँगी ना आम इंग्लिश आसी जाऊँ डायरेक्ट कॉमर्स और साइंस तो पूरा इंग्लिश ही इंग्लिश जदि तुम आर्ट्स पढ़ुच ठीक अच्छे से तुम ऑप्शंस अच्छी कौन ना ओडिया नेबारे किंतु तापर कौन पूरा इंग्लिश आसी जाऊँ तो इंग्लिश जाना निहाती दरकार इवन इफ क्लास रे जदि पिला बसुची से लेक्चर्स भी होउची इंग्लिश रे होउची बुझी होउची ना नहीं तो इंग्लिश जानिले कौन हबो ना जदि तुम स्पीकिंग एबिलिटी तुम कतरे आसी जीवो ता माने कौन करि परिबो तुम क्वेश्चंस भी सार को पचारि परिबो इजिली उठी कि सर ए क्वेश्चंस टा बुझी होनी इन इंग्लिश अदरवाइज तुम जदि इंग्लिश कहि पार नथबो जानि पार नथो तुमको डर लागियो यार मैं केमिति क्वेश्चंस पचारि सर को कुआडे पिला माने ओडिया रे पचारले पर हसी देबे तो ए दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर So need everywhere college रे लागू job sector रे लागू everywhere whenever you go English is imperative yes or no then third point is smartness and makes you more confident yes जदि तुम देखो इंग्लिश रे जी भी कहूँ इट शोज द स्मार्टनेस इट सिंपली कौन करे ना स्मार्टनेस देखा देखो भाई देख सी केते इंग्लिश रे कहूँ भाई केते स्मार्ट सी ये सुनो आउ कौन करे तुमको कॉन्फिडेंट फील कराए फॉर एन एग्जांपल जदि देबी जदि गोटे कहबी तुम गोटे जाइछ रेस्टोरेंट को जाइछ से रेस्टोरेंट रे कौन अच्छी ना समस्त बसिक इंग्लिश रे कहते बहुत वीआईपीज माने जाइछन्ती तुम तुम लैंग्वेज रो गलो कथा भी हेलो किंतु देखो से जगह तुम जदि इंग्लिश भी जानिथिबो ना तो तुम से वेटर को भी इंग्लिश रे कहि परिबो किछि भी ऑर्डर भी देई परिबो ये सुनो ता माने इट शोज मोर कॉन्फिडेंट ये सुनो तो तुमको से कॉन्फिडेंट फील कराइबो यस तापर पॉइंट लेछि हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग इन योर वर्किंग प्लेस फॉर एन एग्जांपल तुम एमिति जगह काम करछो जो जगह मैक्सिमम पीपल इंग्लिश कहती फॉर एन एग्जांपल आमर देखिबा साउथ इंडियंस माने स्पेशली कौन कहती तांकर साउथ लैंग्वेज कहती नहले इंग्लिश कहती इंग्लिश से माने कहया पई प्रेफर करती ये सना आफ्टर देयर ओन लैंग्वेज तो सेति पई तुम जदि से जगह काम करती हो मैक्सिमम्स आर साउथ इंडियंस तो तुम सेठी कौन करि परिबो आराम से कौन ना इंग्लिश रे कम्युनिकेट करि परिबो तांको सहित इंग्लिश रे कम्युनिकेट करके सब जिंस को बुझी परिबो बा तांकर हेल्प भी तुम नहीं परिबो ये सनो सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग इन योर वर्किंग प्लेस आउ सबुटो इंपोर्टेंट टीच योर चिल्ड्रंस पेरेंट्स मानकर सबुटो बड़ो ये था यार मो छुआ को मैं इंग्लिश मीडियम रे पढ़ेबी ठीक अच्छे ना ना जदि से इंग्लिश जानिबे तो तांको पिला मानको से छोटरू छोट बेलू इंग्लिश कन्वर्सेशंस पिला सहित करेंगे पिला भी बहुत बेनिफिट हम ये सो सो दैट्स व्हाई पेरेंट्स ऑलवेज थिंक दैट आई ऑल्सो लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू टीच माय चाइल्ड ये सो दैट्स व्हाई it is also an important part teach your childrens okay so I have completed that why should we learn spoken English एबे हमें कौन करिबा एबे हमें देखिबा जे इंग्लिश जो हमें सिखी पारेने ना जो डर रही से डर कहीं की रही से डर विषय रे टिके हमें कौन करिबा ना एनालिसिस करिबा देले जाके हम से डर क्लियर हो डर क्लियर वंस थरे से डरटा जदी पळेबो से थॉट्स को जदी हमें ठीक रे बुझी नबा ताहाले हम आउ डर रहिबनी हमें इंग्लिश को इजीली लर्न करि परिबा तो चलंतु से पार्ट भी हमें देखि दबा एबे आसो बहुत इंपोर्टेंट पार्ट देखिबा कोन जे हमें कहीं की इंग्लिश कोई पारुने दीज आर द रीजंस देखो जो रीजंस गुड़ा लिखी दीज आर द रीजंस एथि आमे इंग्लिश कहि पारुने फर्स्ट रीजन कौन लिखी फियर इन मेकिंग मिस्टेक्स तुम्हें डर समस्ते डरती यार इंग्लिश कहला बेले जदि मोर इंग्लिश भूल हो
एवं ताकू लगे कि देख मुझे लिखी अदर्स लाफ एट मी जदि भूल हो लोक मैंने हसीदेनि तो मुझे इंग्लीश कहूँ मुझे इंग्लीश कहला बेले मोर जदि ग्रामर मिस्टेक हो इंग्लीश कहला बेले जदि मोर सेंटेंस मेकिंग मिस्टेक हो लोक मैंने हसीदेवे लोक मैंने हसीदेवे मोर कौन हम ये थट्स से कौन हुए ना आम के इंग्लीश कहवाई ट्राए ही कैनि बुझी ना ना जदि तुम जदि मिस्टेक डर जदि गोटे जिनस को ट्राए करनी ताले तुम्हें केबे भी से मास्टर हो पार तुम्हें निजे देख जी तुमको कह गोटे छोट पिलाटे चलवाई फास्ट सी कौन करे कितने थर सी ठिया होता है ठिया होकर पुणी पड़ जाए छिड़ा हुए पड़ जाए छिड़ा हुए पड़ जाए सी जब भाव मन भर जब आसीज ना मत कष्ट होची मुझे पड़ा बेले लोक किए भावीदेवे जब कौन हम ताने से केबे चली पारता ना केबे माने केबे दौड़ी पारि था केबे पारि न था सेम जिनस तुम लाइफ रे तुम कौन सी जगह भी तुम यूज कर साइकिल चढ़ा पाखु तुम लाइफ रे किसी भी अचीव कर तुम निश्चित ना निश्चित मिस्टेक कर मिस्टेक रो ही शिखी तो नेवर गेट फियर्ड दैट इफ आई विल स्पीक दैट वेदर आई विल मेक मिस्टेक्स और नॉट डोंट थिंक अबाउट दिस ये सब जिनस को माइंड रू बाहर कर जे मिस्टेक हो से मुझे अरे मुझे चाहूँगी तुम मैंने मिस्टेक कर तुम मैंने निजे भी भाव मिस्टेक कले ही तुम शिखब ठीक अच्छे ना ना तो नेवर एवर फियर द मिस्टेक्स एवं यहीटा ही गोटे रिजन जो द्वारा पिला के ट्राए ही करते इंग्लीश कहवाई दैट इज कॉल्ड फियर इन मेकिंग मिस्टेक सेकेंड हूँ अदर्स लाफ एट मी मुझे इंग्लीश एमती भंगा भंगा इंग्लीश कहूँ फॉर एन एग्जांपल ब्रोकन इंग्लीश जेटा आम कहूचे दे धर जो आई एम गोइंग टू पुरी को जन जब कहीदेला आई गो पुरी तो दिस काइंड ऑफ इंग्लीश और सिंपल तुम जब एमती भी कहीपर कि ही इज कमिंग राइट नाउ जन एमती कहूँ ही कम राइट नाउ तो इट इज अ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हाउ कैन यू यूज सिंपल प्रेजेंट तुम एमती भाविकी से कौन ना के इंग्लीश कहनी यार मोर ग्रामर मिस्टेक हो हाउ कैन आई स्पीक इंग्लीश एंड लोक मैंने हसीदेवे जाणी जब किए मो सांग थी बहुत इंग्लीश ग्रामर जानी तो मुझे इंग्लीश कहबी ना ता द्वारा कौन हम ना तुम के भी ट्राए ही करून एवं से ट्राए द्वारा तुम कौन हो के इंग्लीश कह भी पारन ठीक अच्छे तो डरनी जमा भी किए हसुची ध्यान भी दियोनी ठीक अच्छे आज हसुची सी तुम प्राक्ट करी दिन आसो तुम आराम से इंग्लीश बहुत भल भाव भी कहीपर थर्ड पॉइंट कौन अच्छे डू नॉट नो इंग्लीश ग्रामर दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स मत लगे जो लोक भावती कौन हो जब इंग्लीश ग्रामर ना ना ताना इंग्लीश कहीपर मुझे बारंबार कहूँ ग्रामर इंग्लीश कहवा सहित जब तुम डीपली देखो कौन संपर्क ना केवल बेसिक ग्रामर दरकार जब मुझे तुमको कहि पिला बेले इवन बहुत पिला माने ओडिया कहते किसी अलग लैंग्वेज कहते कौन से लैंग्वेज तुम कौन डिटेल ग्रामर जानी था कि जान था खाली जस्ट कही 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 तुम गोटे अभ्यास हो जाए और तुम से पैटर्न रे कही चलो ये सुन एंड मोर कहबार उद्देश्य हूँ से पैटर्न को आमको जानवर अच्छे हाँ एटा भी इंपोर्टेंस जे आम इंग्लीश ग्रामर को इग्नोर करें बेसिक ग्रामर दरकार जस्ट टेंस टिके दरकार टेंस पर टिके एक्टिव पैसिव दरकार ये हेले एनफ टेंस दरकार एक्टिव पैसिव दरकार आउ किछि भार्ब रो यूजेस दरकार बस सेंटेंस मेकिंग कलो आराम से तुम इंग्लीश कही पार धीरे 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 कही 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 देखो तुम आराम से भल इंग्लीश भी कही पार और बेसिक इंग्लीश ग्रामर भी तुम मिस्टेक्स हेनी ये सुन तेणु भावनी जे मत बहुत इंग्लीश ग्रामर शिखा दरकार किसी इंग्लीश ग्रामर शिखा दरकार ना केवल खाली टेंस को तुम जापर दरकार यहाँ हूँ मोर प्रेजेंट टेंस यहाँ हूँ मो पास्ट टेंस कहूँ यहाँ मुझे फ्यूचर कहूँ दैट्स एनफ आउ टे पैसिव एक्टिव को जापर दरकार ओके मुझे ऑब्जेक्ट कहला बेले एमती एमती मुझे ऑब्जेक्ट कहला बेले यार फॉर्मटा एमती गाँची दैट्स एनफ एतिक होगला माने तुम होगला इवन पिला मैंने एमती अच्छे पैसिव वॉइस भी जानते मुझे कहूँ शुण पैसिव वॉइस भी जानते इवन ग्रामर भी किसी भी जानते से बहुत बढ़िया इंग्लीश कहते बढ़िया इंग्लीश भी कहते से ठीक अच्छे तो तेणु ये सब जिन छाड़ी दियो मो कतर जब इंग्लीश ग्रामर मुझे जमा जानी केमी कह छाड़ी दियो जस्ट कह ना खाली कहवाई ट्राए कर ठीक अच्छे तो डोंट फियर अबाउट दी इंग्लीश ग्रामर ओके नेक्स्ट पार्ट इज इट इज वेरी डिफिकल्ट माइंड रो तो बसी जाइए आमर ये भाई इंग्लीश कहवाटा ना सबुठ बड़ डिफिकल्ट आम के ट्राए ही करा सो से डिफिकल्टी को तुम एमती भाव में पूरेच तुम माइंड रे सबकॉन्शियस माइंड रे एमती पूरेच केवल ट्राए ही करन से लैंग्वेज को शिखापी इंग्लीश को शिखापी सो इट इज वेरी डिफिकल्ट एवरीबडी इज थिंक लाइक दैट एंड अनदर वन इज डू नॉट नो इंग्लीश वर्ड्स एटा गोटे रीजन कि सार आम कतर वार्ड स्टॉक ना वार्ड अभाव अच्छी आम इंग्लीश कहला बेले सार आम से वार्ड जापर से सार अटकी जाऊ अटकी गले लोक कौन भावे सार सांगे सांगे हसीदेवे सार देख बढ़िया कथाटे कहूँ मु चाहूँगी ठीक अच्छे वार्ड ना वार्ड धीरे धीरे शिखा एटा किसी असुविधा ना तुम गोटे बही पढ़ नोवेल पढ़ आराम से पढ़ जे बही तुमको भल लगुच इंग्लीश गप बही पढ़ आराम से वार्ड धीरे 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 तुम आड हो एंड सेकेंड पॉइंट हूँ जदि भी मुझे कहली जदि भी तुम वार्ड जान तुम मदर टंग से वार्डटा कह दियो जमी जब से वार्ड भी जानी ना भाभी भी दियो से वार्ड वोकाबुलरी ही आसुनी तुम डायरेक्ट से वार्ड यूज कर ना डायरेक्ट वार्ड कर जमी मु कौन करे जब मत किए पचार
मु बहुत वेजिटेबल्स ना जानी एवं मु कौन करते से वेजिटेबल्स ओडिया ना कह दिए जमी जो मत किए पचारा कि तो आज कौन खाइछु आई टोल्ड दैट यस आई हैव हैड भेंडी ये सुनो मुझे जानी भेंडी रे इंग्लिश तरह जो मुझे लेडीज फिंगर और समथिंग लाइक दैट बट मुझे मत सडन आसला मुझे भेंडीज कह दिए तो ता माने कौन भाई सी बुझी पारुवा दरकार कम्युनिकेशंस कौन होची बुझीवा दरकार ना जदि सी भी बुझी पारे ओके भेंडी आई कैन अंडरस्टैंड ये सुनो so that is why I am telling that there is not that much necessary that you have to know each and every word you can speak yes then next point is most of us think that is fast I learn everything then I start speaking कुछ हम सब मु शिखी फास्ट ग्रामर शिखी वर्ड शिखी सब शिखी सारा पर तापर जाकि उलेबी इंग्लिश कहवाई एटा केबे भी संभव नुहे बारंबार कहूँ मु माने तुम जब यही जिनसर थॉट प्रोसेस रखी थो जो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर शिखी वर्ड शिखला पर कहबी सेटा केबे भी हुए इंग्लिश कहवा गोटे आर्ट इट इज ए लिंग्विस्टिक आर्ट तुम्हें कहवा से बेले शिखो जो तुम ट्राए कर कहला बेले जब ग्रामर भाव कौ कौ वर्ड को भाव इट्स सडन बहुत जल्दी आसवा दरकार ये कौन हुए ना यहाँ गोटे तुम हेबिट्स हो दरकार कही 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 एमती हेबिट्स हम ना वर्ड सहित सेंटेंस मेकिंग सहित बहुत क्विक हो इट डजंट मैटर दैट वेदर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन ग्रामर और दैट सम वर्ड्स doesn't come to you it doesn't matter you just make it or you just tell it okay so that's why don't think about it I have to learn everything then I would start just whatever you have whatever you know even if you don't know just start I'm telling and the one is silly excuses बहुत यही excuses भी दियंती कि सर आमे केबे स्पोकन इंग्लिश क्लास जाइने आउ केबे सर कोन करिने ना आम पाखरे सांग मैंने नहांती इंग्लिश कहया पाई बहुत बहुत एटा कहंती जे सर आम इंग्लिश केमी कहवा आज पर्यटन तो क्लास नहीं ना सर इंग्लिश रो तो जब इंग्लिश रो क्लास नहीं सर आम इंग्लिश केमी कहवा आ गोटे पिला कौन कहते ना सर मो पाखे इंग्लिश मु क्लास भी जाइए कि सर मो पाखे कई पिला ना इंग्लिश कहवाई से मुझे इंग्लिश कही पारे इट्स अ सिली एक्सक्यूजेस आज के टाइम तुम डिजिटली देखो इंग्लिश आराम से यूट्यूब रे जाके आराम से इंग्लिश शिखी पारुछ राइट और नॉट मत भी देखुव तुम यूट्यूब ही देखुव इंग्लिश शिखीगल बट इंग्लिश कहब केमी देख निजे सहित भी तुम कथा हो ना नहीं तो ट्राई टू स्पीक विथ योर सेल्फ ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ एवरी टाइम किसी जिनस को देखुच इंग्लिश एनालिसिस करने चेष्टा कर किसी जिनस को देखला इंग्लिश भाव व्हाई डू यू थिंक इन योर ओन थिंग ओन लैंग्वेज सो दस थिंक इन इंग्लिश फॉर एन एग्जांपल्स आई एम वाचिंग यू देख मुझे तुमको देखुची आई एम वाचिंग यू तो मुझे कही ना मुझे देखुची जिनस गुड़ा एमती किसी इनसीडेंट होची तो आई एम जस्ट आई थिंक इन इंग्लिश वे और आई एम थिंकिंग इन इंग्लिश so that whatever the coming in my mind whatever the words in coming in my mind in English so that's why you need to understand that okay कि ये सब जिनस को आमको सिली एक्सक्यूजेस दबार ना आमको ट्राई करिवार अछि कहिवार अछि भूल हबो ठीक अछि हम इंग्लिश जमा जानिने ब्रोकन इंग्लिश कहवा इंग्लिश एमिति कहवा कि से इंग्लिश को जमिति लोक माने भी हसिबो के हसंतु ना फास्ट टू स्टार्ट करबा एवं बढ़िया के इंग्लिश कहवा आमे दिने सेही स्पिरिट नै कि आमको जिबार अछि एवं इंग्लिश कहिवार अछि ठीक अछि तो ठीक अच्छे या पर मुझे सॉल्यूशंस दूसरी जो तुमको जो प्रॉब्लम अच्छी जो इंग्लिश कहीं कही पारन तो मुझे किसी सॉल्यूशंस दूसरी किसी एक्सरसाइज भी तुमको सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक्सरसाइज भी देवी जहाँद्वारा तुम जो ट्राए कर तुमको आज भी कहूँ एश्योरेंस भी दूसरी तुम 3-4 मंथ्स आराम से तुम इंग्लिश भल कि कहीपर मुझे भल कि आराम से तुम गोटे बेसिक लेवल कम्युनिकेट कर ठीक अच्छे ना ना तो आ देरी करबानी जो सॉल्यूशंस गुड़ा मुझे दूसरी ताको तुम मैंने नोट डाउन भी करके रखो एवं ता उपरे ध्यान दियो एवं ता उपरे काम करिया मध्य स्टार्ट करो ओके लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन देखो फास्ट कौन लिखिची स्टार्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश फ्रॉम दिस मोमेंट एई समय रु ही ब्रोकन इंग्लिश कहवा स्टार्ट करो किछि आसुनी केवल आई आसुची जिबा गो आसुची कुओ आई गो किसी आसुनी धर जो गोटे पिक्चर देखुच तुमको पिक्चर देखा ओके यही पार्ट मत देखा तो सिंपल लिख आई सी दिस थिंग दैट थिंग बस दैट्स इट ये ही कहवा स्टार्ट कर क्या सहित कथा हो कह आई वेंट देयर वेंट भी जब मन पड़ुनी ना तुम जब जानी पारुन जे पास्ट कौन हम गो जब मन पड़ुची तो कह ताको बुझाई चेष्टा कर इन दी पास्ट एमती लगे देखी ट्राए कर कहवाई तो मोर कहबार उद्देश्य हूँ स्टार्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश वर्ड जदि तुमको आसुनी उड़िया भी से पुराओ 2-3टा इंग्लिश सहित उड़िया पुराओ बट ट्राए करो मुझे तक से उड़िया को भी धीरे 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 केमी मुझे इंग्लिश रे कन्वर्ट करी तो दैट मीन्स योर ब्रोकन इंग्लिश स्टार्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश ठीक अच्छे सेकेंड जिनस हूँ डू नॉट थिंक टू मच अबाउट ग्रामाटिकल एरर ग्रामर विषय तो भाव ही ना इनिशियली फास्ट मुझे तुमको कहूँ जदि सतरे इंग्लिश शिखिबार अच्छे और कहबार अच्छी ग्रामर विषय जमा भी भावनी डू नॉट थिंक टू मच अबाउट द ग्रामर ठीक अच्छे ना नहीं जदि मुझे तुमको जो पढ़ेबी ना मुझे ग्रामर उपर अधिक स्ट्रेस देवी केवल तुमको बेसिक्स ग्रामर शिखेबी आ से बेसिक ग्रामर तुम केमी इंग्लिश कहीपर सेंटेंस मेकिंग केमी करें ताकू मुझे बतईदेवी ठीक अच्छे
तापरे कौन अच्छी ना डू नॉट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू व्हाइल यू आर स्पीकिंग जिते बेले तुम कहूच ना केयर ही करनी किए तुमको कौन भावुची बस कुह मोर कहिबार उद्देश्य एतिकी जे तुम खाली कुह कि भावनी जे सीए कौन कह सीए कौन कौच मोर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो यार वार्ड आसुनी ओडिया वार्ड कहीदेवी ता द्वारा लोक हसीदेवे आई हसंतु ना हसिया दियो बट तुम कहवा के बंद करनी तो डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू फोर्थ नंबर show the courage and always talk to yourself that you can speak nobody can stop you this is very very important ये जिनिस तुम निज को निज सब बेले कह एवं से करेज देखाओ सब बेले कि ठीक अच्छे मुझे आज कही पारुनी दिने ना दिने कहबी सब बेले ट्राई भी कर सब बेले निज को बुझाओ कि मु कहि पारिबी मु भी इंग्लिश कहबी आ मु भी इंग्लिश कहबी आ तापाई ट्राई कर प्रैक्टिकल लेवल ट्राई कर निज सहित कथा हो इंग्लिश रे जदि किछि जिंस देखुछ ताकू इंग्लिश रे ट्राई कर केमिति मु कन्विंस केमिति मु कम्युनिकेट करबी सो सब बेले ट्राई कर आ करेज देखाओ कि केमिति तुम निज सहित कथा भी हेई पारिबो ओके एबे आसो 5 नंबर पॉइंट टॉक टू योरसेल्फ एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश निज सहित इंग्लिश रे कथा हो जोटा मु टिके पूर्व कहतली निज सहित कथा हो जेमिति मते जदि पचारे ओके मु तेरा जो निज को कहबी हेलो मनगोविंद हाउ आर यू are you fine or not then Mangovind says yes I'm very fine I'm so fine and I just did a fabulous job yesterday then another Manav asked me what did you do yesterday then I just started speaking do you know that I did one of the marvelous activities and that activities completely gave me one of the successful achievement then he asked me what kind of activities you were talking about I told that I tried swimming yesterday I tried swimming and I succeeded in it okay so in this way I communicate with myself yes or no तो सेमितिका तमे भी communicate करि पारिबो तम निजे सहित okay so next part is your talk to yourself and start thinking in English एटा तो सरिला निजो भाबो माने कोन सी जिंस को भाबिया पई भी इंग्लिश रे ही भाबिया पई चेष्टा करो ओके तापरे पॉइंट होची फाइंड योर फ्रेंड हु आर आल्सो इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेट जदि तुम फ्रेंड सर्कल की अच्छी बा एमिति फ्रेंड बनाओ जो माने सतरे तुमको कॉम्प्लीमेंट करूचंदी तुम इंग्लिश रे राइट तमे दुई तीन जन जमी तुम देखो से तुम मैंने तुम बहुत क्लोज फ्रेंड थी तुम इंग्लिश कहले भी ताकू मजा लगुत से भी ट्राई करथिबो कि मु भी ट्राई कर इंग्लिश कहया तो सेमिति फ्रेंड सहित कथा हो एवं इंग्लिश रे कथा होगा चेष्टा कर ठीक अच्छे ना ना तो धीरे 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 देखो तुम दुई जनकर इंग्लिश भी आराम से इंप्रूव हो एमती फ्रेंड सर्कल बनाओ क्लीयर अच्छे ना ना घरे भी कथा हुए इंग्लिश रे नेक्स्ट पॉइंट देखो मुझे लिखी बिफोर स्लीप टॉक टू योरसेल्फ अबाउट द एंटायर डेज इंसिडेंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर ना तुम कौन कर ना राति रे सोइला पूर्व मिरर को सामने रखी एंटायर डेज रे जहाँ जहाँ तुम सहित होइतिबो तुम ताको कौन इंग्लिश रे कहइबो ठीक अच्छे धरा जो मु कहबी केमिति ना आई गॉट ऑफ 6 a.m. and I just whenever I got off in the bed I started washing my face and completed my daily work and after that I took my breakfast and I left for college and whenever in college I met my friends and we celebrated one of my friend's birthday and we just enjoyed a lot etc etc ओके तो एमिति तुम कौन कहि परिबो ना मिरर सामने रे बसिकी जोर जोर रे आराम से तुम कहि परिबो कम्युनिकेट करि परिबो एंटायर डे रे इंसिडेंट जहां तुम सहित होइतिबो ता द्वारा कोन हबो ना तुम सोइला पूर्व भी तुम इंग्लिश जो स्पीकिंग बा जो तुम स्पीकिंग हैबिट्स अछि से स्पीकिंग हैबिट्स भी सेटा भी धीरे 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 कोन हबो ना सेटा भी से प्रोग्रेसिव मोड रे रहइबो एवं सबकॉन्शियस माइंड ना ताकू निजो भितरे अडॉप्ट करिनबा स्टार्ट करिवो ठीक अछि तो ता द्वारा तुम देखिबो बहुत जल्दी जल्दी तुम इंग्लिश भी कहि परिबो और सिखि परिबो Then another point is read loudly 15 minutes every day. This is also very important. Every day तुम्हें 15 मिनट मु कहूनी आधा घंटे पढ़ो कि घंटाए पढ़ो सिंपल 15 मिनट्स तुम्हें ट्राई करो गोटे नॉवल नियो जो नॉवल तुमको बहुत इंटरेस्ट लगुची बा तुम स्टोरी बुक नियो जो स्टोरी बुक तुमको इंटरेस्ट लगुची से स्टोरी बुक को पढ़ो से नॉवल को पढ़ो कौन करिवो ना 15 मिनट बड़ बड़ पाठरे पढ़िवो बड़ बड़ पाठरे पढ़ कि सेथिरु 15 मिनट पढ़ी साला पर किछि किछि वर्ड्स बाहरिबो से वर्ड्स जदि तुम तार मीनिंग जाननो गोटे कॉपी रखिबो गोटे नोटबुक रखिबो से वर्ड रो मीनिंग तुम लिखिबो आ से वर्ड रो मीनिंग लिखला पर तुम भी जानि परिबो से वर्ड को केमिति यूज करा जायछि ठीक ठीक अछि ना नै तो वर्ड तुम जानि पारलो यूज करि पारलो এবং से वर्ड्स गुडा को भी तुम कोन करि परिबो ना डेली तुम इंग्लिश कहि माने जो जते बेले कहूछ भी से भी तुम यूज कर ठीक अच्छे ना दिस इज वन ऑफ द पावरफुल एक्सरसाइज ओके 15 मिनिट्स लाउडली पढ़ो लाउडली धीरे धीरे नुहे लाउडली पढ़ले कौन हम ना तुम सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे स्टेटमेंट गुड़ा को जो सेंटेंस गुड़ा को रिसीव करता है ता सहित कौन करे ना तुम जो टंग रो फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलप हुए ठीक अच्छे ना टंग रो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हेले कौन हम तुम जो इंग्लिश कहि पारो ना इजीली इट विल बी वेरी फ्लुएंट एंड इट विल बी वेरी स्मूथ
it doesn't take so much time to speak. Yes or no? So it will be very, that means you can say voluntarily. It comes voluntarily. ठीक अच्छी. तो that's why you have to read loudly 15 minutes every day. So what you can read? You can read storybooks, novel, etc. and etc. Even if someone interested to read newspapers, he or she also prefers the newspaper as well. ठीक अच्छी. तुम आराम से तुम्हें ये सब जिनस करि परिबो. 9 watch English news. फॉर एन एग्जांपल मु लिखि देछि बीबीसी देखि परिबो, सीएनएन देखि परिबो, एनडीटीवी आसे, इंडिया टुडे आसे, एमिति जो इंडिया रे भी जो इंग्लिश चैनल अछि तमे ताको प्रेफर करि परिबो, इंटरनेशनल इंग्लिश चैनल को भी तुम प्रेफर करि परिबो, बीबीसी एंड सीएनएन. ठीक अछि ना? नहीं तमे ता द्वारा कोन हबो ना, इंग्लिश बारंबार सुनिले कोन हबो ना, तुम माइंड भी जो धीरे धीरे ताको रिसीव करबा स्टार्ट करिवो. सेति पई कोनति ना, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. जदि तुमको भल स्पीकर हवा को अच्छे, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको कौन करिवार अछि, गोटे भल लिसनर हवार अछि. तुमको भल सुनिबार जो एबिलिटी बा कैपेबिलिटी को तुमको कौन करिवार अछि, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करिवार अछि. ठीक अछि ना? नहीं बस तो एतिके हे गला. ये सब पॉइंट सरला परे आउ गोटे पॉइंट रहिला. से पॉइंटटा होछि मु अछि तुम मानकु ए जर्नी रे हेल्प करिया पई. ठीक अछि ना? नहीं ए कम्युनिकेटिव कम्युनिकेशंस जो इंग्लिश कम्युनिकेशंस अछि ताको मु तुम मानकु तुम मानक मु बतैबी आ केमिति तमे आराम से शिखि परिबो फ्रॉम द जीरो लेवल रु. ओडिया रो किछि भी जानिनो, मु कहूची ओडिया रे तमे पूरा ओडिया जानिचो, इंग्लिश जमा भी जानिनो, पूरा जीरो रु आमे इंग्लिश शिखिबा. जीरो रु बुझी परछ ना? सी जाउची, सी गोटिए भलो पिला, राम गोटिए छात्र गोटे, एमिति रु आमे शिखिबा जे इंग्लिश को केमिति यार ट्रांसलेट केमिति होची, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशंस केमिति होची, ए जिंस भी आमे शिखिबा. ठीक अछि ना? नहीं हां आउ गुटे कथा जोटा मु एठी लिखि नाही, सेंटेंस को सब बेले ट्रांसलेट. ओके इनिशियली तमे ताको ट्रांसलेट करिवो, किंतु मने रखो सब बेले माइंड रथिवो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिवो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ट्रांसलेशंस? ट्रांसफॉर्मेशंस माने होची तमे कोन करो, गुटे जिंस को बुझिलो ना तमे वेरे ताको रिप्रेजेंट करिवो. ट्रांसलेशंस कोन ना, तमे वर्ड टू वर्ड जते बेले गुटे जिंस को तमे कोन करो, ताको वर्ड द्वारा जो उड़िया लिखा है ताको हम इंग्लिश करिवा, ताको इंग्लिश करिया, ताको हम कोए ट्रांसलेशंस. ट्रांसफॉर्म कोन से सेंटेंस को द्वारा जो किछि उड़िया अछि बा गोटे सीन देखुचो, से सीन को पूरा बुझी गलो, तापर तम वे रे तमे कहलो ताको कोनती ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक अछि ना? नहीं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशंस. इनिशियली ट्रांसफॉर्मेशंस टिके तुमको टिके डिफिकल्ट लागि पारे, कारण गोटे जिंस को इंग्लिश रे भाबिले तमे ट्रांसफॉर्म इजीली करि परिबो. तो तमे कोन करो, फास्ट आगे ट्रांसलेट करो, धीरे धीरे ताको ट्राई करो जे मु केमिति आ ट्रांसलेट न करबे ट्रांसफॉर्म करबे. गोटे जिंस को देखुचो बुझिलो, ट्राई करो निजो वर्ड रे थ्रो करिया पई. एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट यू हैव टू ऑलवेज focus on the transformations of the sentence instead of the translations. Yes or no? तो ठीक अछि. नेक्स्ट क्लास रे देखा हबो. फास्ट तुमको मु बतैबी सेंटेंस मेकिंग आमे केमिति करिबा, ओडिया रे सेंटेंस मेकिंग केमिति एटा और इंग्लिश रे ताको आमे केमिति सेंटेंस मेकिंग करिबा. ठीक अछि ना? नहीं तो नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखा हबो.